हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि दे डोंट नो द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव। उनको ये तो पता है कि सेंटेंस एक्टिव का पैसिव किस तरह से बन जाता है, बट इफ वी टॉक अबाउट रूल्स दे डोंट, they become shy. Okay? So, in a very perfect manner, to learn active voice and passive voice, please concentrate on board and write all the rules and learn them accordingly. Okay? So, I am making a table for you. This is active voice sentence and this is passive voice. If the sentence is in present indefinite tense or in present simple tense, we will convert it with the by the use of helping verbs used in present continuous tense. I will write you here. In simple present tense, there is inactive voice. How do we identify? हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स लगा दे रहा हूँ कि इसमें वर्ब के साथ में एस और ईएस हो सकता है, डू हो सकता है और डज हो सकता है। ओके? जब हम इसका इस सेंटेंस का जो प्रेजेंट सिंपल में होगा, इसका जब पैसिव बनाएंगे, वी विल यूज इज, आर, am as helping verb and we will convert the form given into third. Okay? These are the tips how we identify the sentence in simple present. So again, if sentence is in present continuous tense, is RM will be used and verb first form plus IN. जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, उसकी पहचान क्या है कि उसमें इज RM हेल्पिंग वर्ब का यूज किया होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगा। इस वाले सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, देन वी यूज is being, are being and am being with third form of verb. Simple? So, if our sentence which is in active voice is in present perfect tense, how do we identify that the sentence is in present perfect tense? By the use of its helping verb. In simple perfect tense, there will be has or have with third form of verb. It will be replaced with has been and have been with third form of verb. इस सेंटेंस को पहचानने के लिए हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव एंड देयर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज रिप्लेस्ड विद हैज बीन एंड हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. ओके? नाउ द टेंस कम्स पास्ट इंडेफिनिट or past simple. It is identified with second form or did. Here helping verb is mostly did. इसको अगर हमें बदलना है तब हम यूज करेंगे was, verb according to subject and third form of verb.
Similarly, in past continuous tense, what is its identification? Its identification is was or were is used as helping verb with first form of verb plus ing. It will be replaced with was being and were being with third form of verb. Later on, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है विद द यूज ऑफ दिस वे. सो डोंट वरी, वेट लिटिल बिट. नाउ नेक्स्ट टेंस इज पास्ट perfect. It is identified with had and third form of verb. It is replaced with had been according to subject and third form of verb. Past perfect. Now comes future indefinite. What is its identification? Will or shall is used with first form of verb. It is replaced with will be or shall be with third form. Now, future perfect tense. Future perfect tense is identified with will have or shall have with third form. It is replaced with will have been and shall have been with third form of verb. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अच्छा, साथ ही साथ ये बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस नहीं दी जाती. सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस नहीं. ओके, देयर आर आल्सो सम वर्ड्स, सम प्रोनाउंस व्हिच वी रिप्लेस. Like I is converted to me, he is converted to him, she is converted to her, you is converted to you, you remains you, and they is converted to them. Okay? Now, let's take some examples. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लें और उन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको बताएं कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में विद द यूज ऑफ दिस टेबल चेंज करते हैं. मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अगर हमें टेंस आते हैं तब भी, अगर नहीं आते हैं तब भी, विद द यूज ऑफ दीज आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स और आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब्स, वी कैन आइडेंटिफाई देम, आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस. सो हियर वी गो. The very first rule is we change subject to object and object to subject. Okay? Second rule is we use by
before the object. थर्ड रूल है change in tense is according to above tense. ओके, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जो भी हमने पैसिव सेंटेंस बनाया है उसके ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं और सेंटेंस के टेंस में इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर योर डाउट्स। व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। ओके, सो पहला सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे सेंटेंस है, राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे इट विल बिकम आम राम के द्वारा खाया गया। आम राम के द्वारा खाया गया। इट इज इन हिंदी। नाउ इन इंग्लिश, राम eats an apple. This is the sentence which is in active voice. We have to change it in passive voice. According to our first rule, what is this? This is object. What is this? This is subject. Object is always written at the last and subject is always written at the first. And according, और पहले रूल के अनुसार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि हम पहले लिख देंगे। एंड सेकेंड रूल, वी यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। हमने राम जो इस वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, इसको हमने बाद में लिख करके ऑब्जेक्ट बना दिया। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट एन एप्पल था, इसको हमने पहले लिख करके सब्जेक्ट बना। ओके, गेटिंग? यस। नाउ थर्ड रूल का अब तीसरा रूल आता है। तीसरा रूल आता है इस टेबल के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करें। सो मैंने आपको लिख रखा है आपकी हेल्प के लिए, आइडेंटिफिकेशन। इफ एस और ई एस इज एडेड इन द वर्ब देन द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिंपल। हियर एस इज एडेड विद द वर्ब। S is added with the verb means this sentence is of present simple tense. What we do? We have to use is rm as helping words. Is rm का हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ आवर सब्जेक्ट इज an apple. An apple is सिंगुलर नंबर। ये एक वचन शब्द है तो इसके साथ में हमेशा इज आता है। ओके, सो वी विल यूज एन एप्पल इज। नाउ थर्ड फॉर्म, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट? ईटन। सो इन अ वेरी सिंपल वे you have converted our first example in passive. Ram eats an apple. An apple is eaten by Ram. Okay? Yes? Now we will take another sentence. They
played football. They is subject and football is object. This is your active voice. Again, we will apply our first rule. We will write this football in the place of subject. Always remember to write the first letter capital in capital. This is passive. Object is written in place of subject and subject is written in place of object. Yes, they is converted to them. I is converted to my. He is converted to him. She is converted to her. Yes, check out the table. What we will write in place of object? They. They means them. And before object we will write by. और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लिखते हैं. नाउ थर्ड रूल्स कम विद द यूज ऑफ दिस टेबल. इस टेबल की हेल्प से हम आगे का सॉल्यूशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग कम्स व्हाट दिस सेंटेंस belongs to. In which tense? In which tense this sentence belongs to? Here we are seeing that played. Played is the second form, and when played comes as second form, then this sentence will be in past indefinite tense. Okay? So in past indefinite tense, in passive voice, we have to use was or were as helping verbs according to subject. Here subject is football and football is a singular number, so we will use was. Football was. And now the third form of verb. Verb is play. So third form will be played. This way you have made your passive sentence. Football was played by them. Okay? Now again, we will take another tense and another sentence. अब हम एक दूसरा सेंटेंस लेंगे जो कि अलग टेंस में होगा. इसको आपको कोशिश करनी है कि आप इसको चेंज करके बताएं. Okay. The sentence is in active voice. They were eating mangoes. They were eating mangoes. सबसे पहले हमारा रूल क्या था? सबसे पहला हमारा रूल है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. यानी कि they is again converted to them and written in the place of object. And this mangoes, which is object in active voice, is converted to subject in passive voice. Second rule, we will use by before object. Now, third rule comes identification of this sentence. In which tense this sentence is. Here, were is used. Were, helping verb is used. So, we will identify that were comes here. And this sentence is in past continuous tense. To replace it or to change it in passive voice, we have to use these two helping verbs, was being or were being with third form of verb.
अब हमें वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मैंगोज, मैंगोज मीन्स मैंगोज इज अ प्लूरल नंबर। इन मैंगोज कम्स वर्ब बीइंग, तो मैंगोज verb being eat third form eaten by them. So I hope, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड में एक्टिव से पैसिव चेंज करना इस टेबल की मदद से आ गया। I hope that you all have learned how to change active voice into passive voice. Mangoes were being eaten by them. कुछ आगे भी रूल्स हैं, हम उनको कल पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं, वो दूसरा रूल है। इसके साथ ही इसका एक और पार्ट है कि अगर सेंटेंस के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस आए तो उन इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करें। ये रूल केवल असर्टिव सेंटेंसेस के लिए था। असर्टिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के लिए रूल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो कि शायद में भी अगर मुझे टाइम रहा मैं कल आपको। ओके, सो टिल टाइम इन सारे रूल्स को लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी अपनी बुक्स खोलिए, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे होंगे, उन फिल इन द ब्लैंक्स को यूज़ कीजिए। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि आपको दिया होगा यू शुड बिगिन विद मैंगोज वर्ब एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप दैट यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, कि आप मेरी सारी बातों को समझ गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो भी हम एक्टिव या पैसिव बनाते थे वो केवल हम उनकी एक आदत के अनुसार बना देते थे या फिर प्रैक्टिस के अनुसार बना देते थे, लेकिन हमको डीपली इन रूल्स की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमसे कहीं पर कोई सेंटेंस स्लिप कर जाए, हम उस सेंटेंस को गलत बता पाए। या फिर अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई दे वर ईटिंग मैंगोज का पैसिव मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय देम, ये कैसे बना। ठीक, मैं समझता हूँ कि आज से पहले आपके पास इस बात का कोई भी आंसर नहीं था, लेकिन अब चूंकि आपने इस टेबल को पढ़ लिया है, सारे रूल्स को समझ लिया है, आप बता सकते हो कि इफ सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस वी यूज वर बीइंग एंड वाज बीइंग एंड हियर ईटन इज द करेक्ट फॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा जो शायद आप लोगों को पता भी है या नहीं पता, आई डोंट नो, कि वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ वर्ब इज आइडेंटिफाइड इन द सेंटेंस। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वर्ब जहां भी कहीं होगा उसके लास्ट में ना, नी, ने आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, पढ़ना, खेलना, हर वर्ड के लास्ट में ना आया, तो उस ना से हम उस ना वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ब है और इसी वर्ब के अंदर एस या ईएस लगा हुआ है, इसी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, इसी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, या इसी वर्ब से पहले हमने विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया। ओके, सब्जेक्ट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर होता है और सब्जेक्ट इज द वर्किंग बॉडी इन द सेंटेंस। इसमें आम को किसने खाया, इसमें आम को दे ने खाया,
तो दे क्या हो गया? दे इज द वर्किंग बॉडी, सो दे इज द सब्जेक्ट। और खाई क्या चीज? खाई क्या चीज? हमने उसने दे ने मैंगोज खाए, राम ने मैंगोज खाए, सो मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, दोबारा से एक बार और फिर से समझ लीजिए। मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिख रहा हूं, इसका पैसिव क्या बन जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ओके, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। We have to take care of all the tenses in each of the sentence before we convert active voice to passive voice. Okay, bye bye for now. We shall meet again in interrogative sentence. Don't miss my next video. Okay, bye.